IVM. मैं अक्का पॉडकास्ट जला डालेगा. That was the opening quote. Welcome to As It Age Well. My name is Abbas. With me in the studio for now is Urjita, my co-host. Hello, hello. And that was a quote from the 2004/2006 film Black Friday, directed by Anurag Kashyap, which is based on a book written by Hussain Zaidi. And Urjita, the episode that we're going to hear now with Hussain Zaidi, we recorded at live at India Pod Day. It was our first ever live recording of As It Aged Well. आप अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगी, कैसा था? बहुत ही बढ़िया था. I am just so happy about the fact that I made him laugh on 2 of my jokes. That's true. I am fucking happy about that. So that was my highlight, to be very honest. कि मैंने इतने मशहूर राइटर को मैंने हंसा दिया, मैंने. वाह. So that was great. So what happens to you on stage? Wow! That was a very unnecessary dig at Urjita's stand-up. No, I'm just kidding. Please watch Urjita's Abbas would stand-up. not know if people laugh on my jokes or not, क्योंकि कुछ 4 साल हो गया ना अपने stand-up नहीं किया. That's true. Nice. So, Well played. yeah. Nice. But I was honestly a little nervous before going on stage for this, because of course I've done stand-up, for which when nobody laughs, it's expected. But I was like, oh my God, live podcast. But I was also very pleased to see that Mr. Zaidi seemed to be enjoying himself. Yeah. And it's a mixed bag of a conversation. Usually we are more streamlined when we are in the studio. We talk about the movie particularly. But इस conversation में हमने Mafia Queens की भी बात की and couple of other stuff that Mr. Zaidi has written. And we spoke about true crime. We spoke about true crime. Criminal psychology, which was a lot of fun. Yes. And Mr. Zaidi actually brought us a surprise. He brought with him his friend, the real Badshah Khan, who's played by Aditya Srivastav in the film. So we make some references to that as well. We hope you enjoy the conversation, and we hope to do a lot more live podcasts in the future. So here's Black Friday live with S. Hussain Zaidi at India Pod Day. Here's the episode. Enjoy. Hello guys, hi. Hello. Don't go for snacks now. This is the best part. Yeah. Second best part. Hi, my name is Abbas. That's my co-host Urjita. Hello. कैसी हो बैंड्रा की आवाम? Yes. Hello. I think we should sit, otherwise the video guy will take my life, because he instructed me to sit. Guys, we host a show called Has It Aged Well. How many people here have heard or seen Has It Aged Well? Please raise your hands, make some noise. Yes. The entire front row, thank you for showing up. But second row also, Abbas. Second row also. The last one are not visible. I'm sure they're also raising their hands. Thanks, guys. Thanks for showing up. For those of you who don't know what Has It Aged Well is, me and Urjita talk about old films. When I say old, I mean films from the 80s and 90s. When Urjita says old, she means 2015. Because I'm 35 and Urjita doesn't want to disclose her age. But we look at slightly older films and we assess what from them has aged well and what hasn't. And we do it with a guest. And Urjita, today we have a very special guest. Very special guest. Yes. Yeah. By the way, I feel like I didn't get enough excitement from you guys. Are you ready to start Has It Aged Well? Yes? Oh my God. My fans, I tell you, Urjita. But truly, we have a special guest today. And the movie we're discussing is Black Friday from 2004/2006. Oh, a round of applause for Black Friday. It was directed by Anurag Kashyap, but the film was based on a very popular book. And today we have the author of the book with us. I'll just quickly give an introduction of him. I don't think he really needs it, because if you've seen anything true crime in the last 10-15 years in India, you've definitely heard his name. He's a veteran journalist, a resident editor at Deccan Chronicle and Asian Age. He's worked with Indian Express, Midday. His research was used in such amazing shows as McMafia and Secret Games. Gangubai Kathiawadi was also based on one of the stories that he's written. He's none other than the man himself. Please welcome on stage Mr. S. Hussain Zaidi. Hello, sir. Thank you very much. Please have a seat. Zaidi sir, हमको assure किया गया कि we were told there will be a bulletproof glass for the stage, because you deal with some very dangerous people and some very dangerous stories. हम आज Black Friday की बात कर रहे हैं, which was your first book and your first adaptation, official adaptation from a book to a film. So that was my first book and my first adaptation. Right. So everything was first about it. Right. Mr. Zaidi, at what point were you approached for the book to be made a film? जहाँ तक मेरी जानकारी है,
बुक आपने लिखी भी पूरी तरह से नहीं थी और उसके पहले आपके पास ऑफर आ गया था एडेप्टेशन का. So yeah, no, book was actually I had received author copies. What you do is that once when your book is published, so before its official release, you get some author copies. Right. So I got 10 copies from Penguin, and I shared few of them with Midday editor. My editor Akar Patel was there, and then we shared with them. Somehow Tariq, he got to see this, Right. and Tariq Ansari, the owner of Midday, he suddenly got excited about the idea of producing a movie on it. Right. And then they got in touch with Anurag Kashyap. Now Anurag Kashyap, in those days, he was like he had made a couple of movies, but they somehow were too stark, real, and like about crime. So his talent was well known. Right. His understanding, his perspective was well acknowledged by everyone. So they thought that he will be the right person to make this movie. And that's Had you seen any of his work before? No, I didn't get time to see actually. My wife never allowed me to see movies, so Oh, wow. I couldn't see any movies until then. Yeah. Okay. पर जब भी ना ये मूवी रिलीज हुई थी तो आपने एक इंटरव्यू में मेंशन किया था कि जैसे इस मूवी की आपकी बुक की बात जब ये बाहर स्प्रेड हुई थी तो काफ़ी टेररिस्ट का आपको फ़ोन आया था. जी. और उनको ये लगा था कि एक्चुअली आप टेररिज्म को ग्लोरीफाई करने वाले उनके काम को. So what do you have to say about वो that? जो आप लोगों को शायद पता होगा उस ज़माने में जो आर्थर रोड जेल है उन्होंने उसको कार्व आउट करके उसमें स्पेशली डेजिग्नेटेड टाडा कोर्ट फॉर्म कर लिया था ताकि वो इतने सारे जो अक्यूज थे 100-150 लोग थे उनको रोज़ आर्थर रोड से सेशंस कोर्ट ना लेके जाना पड़े. तो उसके अंदर वो कोर्ट में एंट्री बहुत मुश्किल होती थी. फर्स्ट यू हैव टू गो एट द रिसेप्शन, फिर वो एक वायरलेस मैसेज जज तक जाता था और जज का रीडर अप्रूव करता था तो वो जाता था अंदर. So when I started working on this book, I mean, got permission to go to that court. Now उस court में जो सारे accused थे, उनको लगा कि ये हमारा दोस्त आ गया, he will do a sympathetic job, and ये हमारी जो परेशानियाँ मुसीबतें उसमें लाएगा. तो बहुत से लोग मेरे दोस्त बन गए. I mean, याकूब मेमन भी, he was my friend, असगर मुकादम और बहुत से लोग जिनको मैं जानता हूँ, उन सब से मेरी दोस्ती हो गई. So they started opening up, sharing the details, stuff to me. So मैंने उनकी सुनी ना. वैसे जर्नलिस्ट हमें सबकी सुनना चाहिए. वो पुलिस हो, CBI हो, lawyers हो, defense हो, prosecution हो, और जो accused हैं उन सबकी सुनना चाहिए. तो because that's how I was working the book. मैं चाह रहा था किताब एक बहुत detailed, comprehensive story हो. So when the book came out, I mean they were very disappointed, and they immediately labeled me Gaddar and all that. So until that time it was fine. But जब बुक रिलीज होने के बाद एक दिन मैंने कोर्ट में जाने की कोशिश की और वहाँ मैंने रिसेप्शन पे जो बाहर जो एक कांस्टेबल बैठा था उसने कहा कि हुसैन ज़ैदी साहिबांना कोर्ट मध्ये यायची परवानगी हवी है, पाठवू काय, इनको अंदर आना है, भेजूँ क्या? तो रीडर ने कहा थांबा. उसने अंदर जज से पूछा, लेकिन आई वॉज सरप्राइज. 10 मिनट के बाद तक जवाब नहीं आया, 15 मिनट तक नहीं आया. फिर जवाब आता है, साहिबांना आतमध्ये नको पाठवा, यांचा जीवाला धोका है, इनको अंदर मत भेजो, ये जान से मारे जा सकते हैं. मैं हैरान रह गया, जीवाला धोखा कोर्ट के अंदर कौन मारेगा? बट मैं फिर अंदर नहीं गया और मैं वहाँ से लौट आया. तब मुझे पता चला कि बॉम्ब ब्लास्ट अक्यूज काफ़ी नाराज़ है उस किताब से. और फिर उसके बाद मुझे 1-2 फ़ोन आना शुरू हो गए और फिर तो अजीब सा था. मैं खुद हैरान बिकॉज मैंने उस किताब में ऐसी बहुत सी चीज़ें लिखी हैं जो उनके सपोर्ट में. फॉर एग्जाम्पल द मेंशन ऑफ वॉइसेस, द वे दे वर टॉर्चर्ड. मतलब किसी न्यूज़पेपर ने आई एम श्योर इतनी हिम्मत नहीं की होगी वॉइसेस का जिक्र करना, उनको 4 डिग्री टॉर्चर के बारे में कहना, और जो बॉम्ब ब्लास्ट अक्यूज साथ हुआ, लेकिन फिर भी वो लोगों को नाराज़गी और शिकायत रही मुझसे. तो सर आपने जब कहा कि आप दोस्त बन जाते हैं अक्यूज्ड से, so how much you but you, at the back of your head you are still aware that they are involved in a incident which took a lot of lives. Where do you draw that line as a journalist in that कि मैं इनके साथ empathize भी करना चाहता हूँ लेकिन ये भी याद रखना है कि भाई इन्होंने एक बहुत gruesome crime किया है. My point is कि when I'm saying those बंदे, I'm trying to speak to them and trying to open up and reveal their mind. Right. But I am trying to be very clinical about my subject. Correct. मतलब मैंने हमेशा यही बात मैंने अपने शागिर्दों को सिखाई है, चाहे वो ज्योति डे हो, चाहे वो जिग्ना वोरा हो, या जितने भी मेरे जो मशहूर शागिर्द गुजरे हैं उन सबको मैंने कहा कि ये तुम्हारे सोर्सेज दोस्त नहीं होते. यू शुड नॉट वाइन एंड डाइन विद देम, यू शुड ओनली ट्रीट देम एज योर सब्जेक्ट. सो आपने देखा हो जैसे एक डॉक्टर है जब उसको सर्जरी करना होती है तो उसको उस पेशेंट से जो है हमदर्दी ज़रूर है. ही इज़ लाइक थिंकिंग दैट ही शुड सेव हिम और शुड डू समथिंग फॉर हिम, बट वो उससे कनेक्टेड नहीं हो जाएगा.
So similarly for me, these are subjects. I have to get a best story possible. I have to make the best possible effort, get the best book or story or article out of it. But I will not be emotionally involved with them. So वरना फिर वो काम करना मुश्किल हो जाएगा. Correct, yeah. और मैं कोई नहीं होता हूँ किसी की बेकसूर होने और कसूर को साबित करने वाला. जी. I am just a storyteller. Sure. जी. मैंने आपकी बुक माफिया क्वींस अभी रिसेंटली पढ़ी थी और इट वाज वेरी वेरी एनग्रॉसिंग. बट उसमें ना मुझे एक बात मैंने नोटिस की कि एज एन इंटरव्यूअर इटसेल्फ यू आर वेरी अंडररेटेड. आई फेल्ट बिकॉज आपने टेररिस्ट आर सपोज टू बी श्रूड मैनिपुलेटर्स, पर आपने एक मैनिपुलेटर से ही आपने इतनी इंटीमेट डिटेल्स उनकी आपने पूछ ली उनसे और वो बता भी रहे थे. तो ये हाउ डिड यू मैनेज टू डू दैट? कौन सा इंटरव्यू पढ़ा था आपने उससे? मैंने ये सपना दीदी वाली जो स्टोरी थी वो पढ़ के आई रियलाइज कि उस तरह से जो आपने उस तरह बात की थी. Can you tell us in short what सपना दीदी's story is? सपना दीदी मैं बयान करूं? जी जी. मेरी फेवरेट कहानी है वो. अच्छा. सपना दीदी. सपना दीदी जो है एक्चुअली उसका नाम अशरफ खान था और उसके हस्बैंड महमूद खान who was known as महमूद कालिया was killed in a fake encounter outside an airport. So उस वक्त ये लड़की हाउसवाइफ थी और लाइक उसको अंदाज़ा भी नहीं था कि उसके शौहर को क्यों मार दिया गया. So she was grieving her husband. She was in mourning and at that time someone told her कि the cop who had pulled the trigger was just an instrument. वो तो दाऊद के कहने में मारा गया है. This housewife's transformation into becoming a killing machine. तो वो अशरफ से सपना बन गई और सपना से जिस तरह हम लोग ये भाई हो जाता है कोई अंडरवर्ल्ड में भाई लोग होते हैं तो वो दीदी बन गई. सपना दीदी बन गई. सो उसकी जो जर्नी थी ना वो इंतकाम की, वो अपने रिवेंज की फॉर टेकिंग रिवेंज फॉर हर हस्बैंड्स ब्लड, वो कहानी थी सपना दीदी. नाउ व्हाट हैपेंड, इट वाज आई at that time when she was killed in 1994, I was not in journalism at that time and her story was more of a legend. दाऊद का कत्ल करने के लिए, उससे बदला लेने के लिए अच्छे लोगों का जिगर नहीं है. मतलब उसको उल्टा जवाब नहीं दे सकते हैं लोग. दाऊद से मतलब उसके सामने खड़े होना लोगों के लिए हिम्मत की बात थी. कोई मर्द ज़ात नहीं कर पा रहा था. एक बहादुर औरत अकेली, नो सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, पुलिस वाले तो हेल्प करने को तैयार ही नहीं थे. जब वो खड़ी हुई थी तो वो कहानी ना अपने आप में लेजेंड बन गई थी. तो मुझे लोगों से पूछना था, बात करना था. रिपोर्टर्स तो बहुत लेजी होते हैं, कुछ खास काम करते नहीं हैं. पुलिस वाले ज़्यादा बताने को तैयार नहीं थे. तो हु विल टेल मी दोज डिटेल्स अबाउट हर. सो आई रियलाइज दैट देयर वाज वन गाय हु ट्रेन्ड हर to what she became. Like एक डोमेस्टिक हाउसवाइफ को उसने गन्स चलाना सिखा दी, यानी मशीन गन से लेकर के पिस्टल से लेकर एवरीथिंग. सो मुझे उस आदमी से मिलना ज़रूरी था. सो आई मेट दिस गाय हुसैन शेख. मेरा हमनाम था, बड़े अफसोस की बात है, बट वी इमीडिएटली काइंड ऑफ डेवलप्ड अ रैपो एंड फ्रेंडशिप. तो उसने चूँकि बचपने में जब 16 साल की उम्र में उसने एक ऐसा उस्तरा चलाया था कि किसी के यहाँ से लेके यहाँ तक एक बहुत ज़बरदस्त जो है क्लिनिकल स्कार बन गया था. तो लोगों ने उसका नाम मशहूर कर दिया, उस्तरा, जो उस्तरा चलाता है. तो वो उस तरह से बात कर रहा था वो. So then I met him and actually I met him with Vikram Chandra. Right. The author of Sacred Games. Yes, yeah. My guru and the man who taught me to write books. Yeah. I must thank him really through this medium. तो उनके साथ बैठा हुआ था. तो वो अपने बारे में जानना चाह रहे थे कि अंडरवर्ल्ड क्या है बताओ. तो उस तरह जो है वो बता रहा. उस ज़माने आपको पता है ये बात है कुछ 95-96 की. आप सोचिए उस ज़माने में दुनिया उतनी तरक्की नहीं कर गई थी. इसके पास एक 6 फ़ोन्स का कंसोल रखा था. हर खबर उसको एक फ़ोन करी खबर देता था. उसके CCTV रखा था. ही हैड द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वेपन्स एंड वो अजीब सा फोर्ट्रेस था जहाँ बैठे थे. तो उसने अपनी कहानी बयान करना शुरू की. तो विक्रम जो सवाल कर रहे थे उसके सवाल से अलग हट के इसने अपने बारे में जब बताना शुरू किया कि किस तरह से अशरफ से मुलाकात हुई और किस तरह से अशरफ से कहा मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा. बिकॉज ही वॉज द ओनली मैन who was thinking of taking revenge from Dawood at that time. He was having some tussle going on with him. So ये दोनों ने जिस तरह से वो एक मुहिम शुरू की थी, तो वो कहानी, और वो उस तरह बताने को तैयार नहीं था. तो मुझे घड़ी वो कभी यहाँ ले जाता था, कभी उस तरह घुमाता था, कभी कुछ और बात करता था. तो I had to keep prodding him, goading him to get the stuff out of him. In the end of I realized कि ये तो बहुत बढ़िया कहानी है. तो मैंने विक्रम से कहा, विक्रम ये कहानी मैं लिखूंगा, ये आप मत लिखिएगा. So but Vikram was writing Sacred Games at that time. हाँ, he was writing Sacred Games at that time and he was more interested in underworld. क्योंकि वो गणेश गायटोंडे जो underworld का character था, तो he had some rivals from Muslim gangsters. Right. Now because we could not meet Dawood Ibrahim or we could not meet other gangsters, he thought कि हुसैन यहाँ available है, मिल रहा है, इससे बात कर लें. तो हम उसके बाद जाके मिलके बात करेंगे. सर मेरे पास एक क्वेश्चन है. जो आप इतने खतरनाक लोगों से मिलते हैं जी,
फटती कैसे नहीं है आपकी, मतलब ऐसे एंटर होने से कि जा रहे हैं, पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं, क्या होने वाला है, आप तो आगे की सोच रहे हैं कि मैं आके क्या लिखूंगा. थैंक यू फॉर द वन पर्सन हु अपलॉडेड दैट. फटती क्यों नहीं? नहीं वैसे देखिए होता यह है कि फटती सबकी है, दिखती नहीं है. और जहाँ तक मेरा मानना यह है कि ये जो सारे गैंगस्टर्स हैं, मैंने इससे बात पहले भी बात कही है तो मुझे लगा शायद रेपिटेटिव है, ये सारे गैंगस्टर्स बहुत बुज़दिल होते हैं. इन लोगों के पास हिम्मत और जिगर नहीं होता. अब इनसे कहिए कि आप अपनी बंदूक साइड में रखें और फिर किसी आदमी से निहत्ते हिम्मत करके दिखाएं लड़ने की, दो दो हाथ करने की. इनकी सारी बहादुरी उस छोटे से तमंचे के पीछे होती है. दूसरी इनकी बहादुरी क्वालिटी ये होती है कि चूंकि लोग बहुत दूर बैठे हैं, कोई दुबई में बैठा है, कोई कराची में बैठा है, कोई मलेशिया में बैठा है, तो उसको वहाँ से बहादुर बनना बहुत कन्वीनियंट होता है. So my whole point was that since I kept on writing stuff about them and I kept exposing them, but I knew that they will never come in front of me and they will try to kill me. So मुझे उनकी हिम्मत पे हमेशा जो है शक था. एक बात. दूसरी बात, I come from a very religious background where my parents taught me कि आदमी एक ही बार मरेगा. तो और जब तक खुदा की तरफ से तकदीर में नहीं होगा तब तक तो नहीं मरेगा, फिर चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले. And it has happened with me. I have like survived bomb blasts in Kashmir, in Iraq, in all those difficult places, and I have seen के लोग और मरने वाले सरदर्द से मर जाते हैं, तो क्या था. So which is I was never scared about writing about them, and I realized कि they made couple of attempts to eliminate me or do something to me, but alhamdulillah I've survived. That's great. You mentioned Yaqub Memon. Yaqub Memon is in Black Friday. He was played by someone very famous who went on to be a film director. Does anyone want to take a guess who it was? It was Imtiaz Ali, yes. Imtiaz was in the movie. Black Friday, also known for having some great actors who went on to be big. But Black Friday ran into a lot of trouble, sir. So the film was first screened in 2004 at Locarno Film Festival. It was slated to release in December 2005, but फिर भी नहीं हो पाई क्योंकि the matter was sub judice. And the court actually said that one of the reasons they stayed the release was because the book and the movie is so well researched, it might actually affect the audience's perception. Isn't this the court essentially saying you've done too good a job, we won't let people read? I am really thankful to the judge who made that comment, because in a way he validated and certified the authenticity and credibility of the information in the book. But I don't know if you guys noticed, जब वो verdict announce हुआ था उसके बाद में 2007 में, तो वो उस किताब में जितने लोगों को भी हमने मतलब लिखा था इन्होंने क्या क्या किया, they all were convicted for all those acts which we wrote about them in the book. In fact सारे news anchors उस किताब को लेके बैठा करते थे as a reference point. So हमने because research, as I said कि हमने बहुत उसके अंदर मेहनत की, बहुत सी चीज़ें पढ़ी, मतलब CBI ने हेल्प की, मुंबई पुलिस ने हेल्प की, उज्ज्वल निकम साहब उस ज़माने में चीफ प्रोसिक्यूटर थे, राकेश मारिया साहब DCP थे, फिर CBI के जो हैं वो रमन त्यागी और देवेंद्र परदेसी, इन लोगों की हेल्प से वो किताब बनी. बट एक साहब जो यहाँ बैठे हुए हैं मेरे सामने, उस्मान जान खान इनका नाम है, और ये मेरी ब्लैक फ्राइडे बादशाह खान के नाम से मशहूर हैं. ही इज़ द ब्रेवेस्ट मैन आई हैव सीन इन दिस वर्ल्ड. मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ मैंने कहा कि लोग बुज़दिल लोग होते हैं, एक बहादुर इंसान मेरे सामने बैठा जिसने अकेले ने मुंबई पुलिस की इतनी हेल्प की कि उनका केस इनकी वजह सुलझ पाया. एंड इट कुड रिजल्ट. The real Badshah Khan is with us, guys. He's played by Aditya Srivastav in the movie. And he of course became the conduit to break the case. And I just want to tell you that this is also 25th year of our friendship. मैं इनसे 1998 में 10 अक्टूबर को मिला था इनके घर पे, और आज हमने इस हफ्ते 25 साल हमने पूरे किए इनसे दोस्ती के. So, round of applause, guys. Come on. Thank you very much. This is proof that friendships can be maintained. Of course. उस्मान भाई बहुत अच्छे और शरीफ इंसान, इसलिए उनसे दोस्ती की है मैंने, आज तक दोस्त है मेरे वो. जी. I wanted to come to, I mean, of course, Black Friday was your first adaptation. उसके बाद आपकी कई सारी किताबें, कहानियाँ adapt हुई हैं. Was there something that you took away from Black Friday that you applied to adaptations later on? कि हाँ ये वो चीज़ें हैं जो Black Friday में work करी हैं, या basically when you write, are you already thinking in your mind how this will look on screen? Actually, सच बात ये है कि मैंने कभी उस लिहाज से लिखा नहीं है, लेकिन चूंकि अभी हमने विक्रम चंद्र का जिक्र किया था कुछ देर पहले, तो आपको पता है जब वो मुझे मिले थे तो मतलब आई वॉज टोटली ज़ीरो. आई वॉज ओनली अ जर्नलिस्ट, आई कुड रिपोर्ट ऑन इंसिडेंट्स. उनकी किताब सीक्रेट गेम्स या पवित्र लीला जो ट्रांसलेट हुई बाद में, आई केप्ट ऑन कंसल्टिंग हिम फॉर राइटिंग स्टोरीज, राइटिंग बुक्स. तो मैंने उससे कहा कि यार ये इतना बड़ा ह्यूमंगस काम है. सी आप लोगों को पता है 12 मार्च 1993 को जो इंसिडेंट हुआ था, वो उस वक्त यानी जब तक 9/11 नहीं हुआ तब तक दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक था वो. उसमें
एक मुझ जैसा मामूली सा पत्रकार जिसको 2 साल 3 साल ही हुए हैं पत्रकारिता में, उसके लिए वो किताब लिखना बहुत मुश्किल था। तो मैंने विक्रम जी से पूछा कि मैं इसको कैसे लिखूंगा, तो विक्रम कहने लगे डोंट टेल द स्टोरी, शो द स्टोरी। राइट। आपको ऑडियंस सुन के जो है शायद वो इतना मुतासर नहीं होगा जितना कि वो आपकी कहानी को देख के मुतासर होगा। ना एट दैट टाइम आई हैड नो क्लू कि मैं जो किताब में जो लिख रहा हूँ, जो उसमें विविड डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, जो ग्राफिक डिटेल्स दे रहा हूँ, वो एक स्क्रीन प्ले राइटर के लिए, एक डायरेक्टर के लिए बहुत बड़ा हेल्प होंगी। तो जब मैंने ब्लैक फ्राइडे लिखी, तो आप अगर देखें, जिन लोगों ने ब्लैक फ्राइडे देखी वो जानते हैं कि उन्होंने सीन बाय सीन उसको उसी तरह से लिखा है, बिकॉज इट वॉज अ बिग हेल्प। एक्चुअली विशाल भारद्वाज ने माफिया क्वीन के फॉरवर्ड में लिखा है कि हुसैन अपनी किताबें ऐसे लिखते हैं कि हमको स्क्रीन प्ले लिखने में ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ती है। सो ये थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया हिम्मत अफजाई का आपकी। सो डोंट यू थिंक आपको स्क्रीन राइटर का भी पेमेंट मिलना चाहिए? यार वो डायरेक्टर लोग मुझे किताब लिखने के पैसे देते हैं काफ़ी है। कई बार मुझे वो भी नहीं मिलते यार। मैं क्या बताऊँ आपसे। सो इसीलिए हुआ ये कि फिर पीछे कि उस रीज़न से लिखने लगा तो उन लोगों को जो है वो आसानी हो गई स्क्रीन पे लिखने। बट आइडिया वाज नेवर कि इट शुड गेट अडैप्टेड और इट शुड गेट अ स्क्रीन प्ले और व्हाटएवर। वो किताब लिखने के स्टाइल में, मतलब वो एक बार आदमी लिख ले तो फिर उसको ऐसे ही जम जाता है, वो लिख लेता है बस। In fact, the film starts with the Mahatma Gandhi quote, "An eye for an eye makes the whole world blind," and the layout of the film is also cause and effect कि क्योंकि ये हुआ उसके बदले में ये हुआ और अब क्योंकि ये हुआ उसके बदले में कुछ और हो सकता है। I just Urjita, you have any more questions for Mrs. Zaidi? I actually had to ask you. This is like an open-ended question, but do you think, like largely, do you think terrorists deserve any empathy? No. Ooh, deep question. Never. बल्कि टेररिस्ट नहीं, बल्कि हर वो शख्स जिसने जुर्म किया है, आई थिंक वाई शुड यू एम्पैथाइज विद देम। मतलब किसी का कत्ल करना क्यों? और माय बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि जो टेररिस्ट अगर धर्म के नाम पे, मज़हब के नाम पे कत्लेआम खून खराबा करते हैं, बहुत बुरी बात है। बिकॉज जिस मज़हब की पैरवी वो कर रहे हैं, उस मज़हब की किताब में, कुरान में लिखा हुआ है कि किसी ने अगर एक बेकसूर शख्स का कत्ल किया तो उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। आप कुरान पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद यह इस किस्म से जुल्म कीजिए। सो इन लोगों को जो इतना खून खराबा मज़हब के नाम पे कह रहे हैं, खुदा खुद माफ़ नहीं करेगा, हम क्यों हिमायत करें उनके साथ में? बस मसला यही है। आपका एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के बारे में बात की, फारूक बटाटा वाला जी। वुड यू लाइक टू टेल अस देयर स्टोरी, क्योंकि वो स्टोरी काफ़ी फिल्मी है मुझे लगा कंसिडरिंग। फारूक मेरा एक सोच था, ही वॉज अ कस्टम्स ऑफिसर एक्चुअली, मरीन ने प्रिवेंटिव विंग का कस्टम्स ऑफिसर था, और वो फिल्मी कहानी है। हाँ। मेरी वाइफ की बेस्ट जो मेरी ज़िंदगी का तोहफा है वो फारूक बटाटा वाला। एंड यू हैव किड्स सर। खैर मैं इनकी इस बात को इसलिए नजरअंदाज कर दूंगा बिकॉज ही डजंट नो सो मच, तो मैं कहूँगा ठीक है कोई बात नहीं। वो एक कस्टम्स ऑफिसर थे और माय वाइफ वेली मेट हिम फर्स्ट व्हेन शी वाज अ जर्नलिस्ट इन आफ्टरनून एट दैट टाइम। सो शी वाज राइटिंग अबाउट अंडरवर्ल्ड और फारूक ने काफ़ी सारी स्टोरीज दी थी। आई केम मच लेटर इन द सीन, शी बाय देन वाज अ एस्टैब्लिश्ड वेटरन क्राइम जर्नलिस्ट। सो जब वो मुझे उस ज़माने सोर्सेज डेवलप कर रहा था, उन्होंने मुझे फारूक से मिलाया। नाउ फारूक, इफ़ यू नो फारूक, ही वाज ह्यूज, यानी 6.25 फीट का आदमी था, बहुत मोटा सा आदमी था, बहुत इसकी यहाँ तक दाढ़ी थी, बहुत मजहबी सा आदमी था। बट द मोमेंट ही स्टार्ट टॉकिंग, इट वाज लाइक एन एनसाइक्लोपीडिया ऑन मुंबई अंडरवर्ल्ड। तो मतलब लिखते 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 मैं थक जाता था जिस तरह से बातें करता था। एंड जैसा कि मैंने कहा कि दाऊद के खिलाफ लोगों को हिम्मत नहीं होती थी खड़े होने की, फारूक जो है वो दाऊद का बचपन का दोस्त था। They both had played cricket together and they both had grown up together. In a very filmy way, Dawood became a criminal and Farooq became a customs officer. ये अलग बात है कि 1997 में उसको फारूक के कहने से गोली मार दी गई और वो मर गया, और उसको मुंबई पुलिस ने, डॉक्टर्स ने बचाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, वो शायद बच सकता था। सो दैट्स द ओनली स्टोरी जो मैंने उसके मरने पे फाइल की और रोते हुए फाइल की। आई हैव नेवर क्राइड व्हाइल राइटिंग माय स्टोरीज, बट फारूक की कहानी में लिख रहा था और मेरी आंखों से ज़ारो कतार जो है आंसू बह रहे थे। तो मुझे आज भी याद है बिकॉज वो बहुत अच्छा दोस्त था। मतलब there are so many fond memories that I have with this guy Farooq. I mean, I've initially read so much about Underworld and so many features only by the help of Farooq's stories. So, I mean, कभी अगर आप चाहें तो ऐसा प्रोग्राम सिर्फ फारूक क्या नहीं करें। I think I can speak about it for half an hour and get you a lot of interesting anecdotes and stories. Sure. Yes. Do you watch all your adaptations very religiously once they are done? Do they show it to you, and do you then have inputs about this is how it happened, this is how it didn't happen? ये बड़ा ख़तरनाक सवाल है। आई एम जस्ट थिंकिंग हाउ डू आई आंसर दिस।
मैंने कुछ देखे और बहुत दुखी हुआ हूँ एंड आई हैड रियली थॉट कि यार मैंने क्यों देखे, बट वो बने हुए थे और मुझे स्क्रीन के लिए बुलाया गया तो मुझे देखना पड़ गया। एक आध बार मैंने एतराज़ कर लिया था स्क्रीन पे देख करके, एक डायरेक्टर से कहा कि भाई आप ये क्या बना रहे हैं, मतलब दिस इज नॉट इन द बुक, दिस इज नॉट द वे इट हैपेंड, एंड ही काइंड ऑफ रिब्यूक्ड मी इन अ वेरी नाइस वे। ही सेड, हुसैन, यू नो यू हैव रिटन अ बुक, आई एम मेकिंग अ 50 करोड़ मूवी, मुझे पता है ऑडियंस को कैसे खुश करना है, क्या करना है, सो आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूँगा। उस दिन के बाद से मैंने थोड़ा सा डिग्री ऑफ सेपरेशन अपने में पैदा कर लिया, एंड आई ट्राई टू डिटैच माई सेल्फ आफ्टर writing a book and after it's been adapted. So I mean they want to do it differently. They say that their craft is different. Right. I don't have to be faithful to the book and I don't have to really reproduce whatever is there in the book. But मेरे लिए ये Black Friday एक अपने आप में एक living testimony है कि अनुराग who remained true to the book and like reproduced it as it is, people loved it, liked it, and after 20 years of this movie's release, it is still among the most watched movies on the digital thing. So मेरा कहना ये है कि वो कहते तो हैं कि उनको ज़रूरी नहीं कि क्राफ्ट इसको ट्रू रखें, बट एक सबूत हमारे पास ज़रूर है कि जिन लोगों ने देखी है ब्लैक फ्राइडे जैसी बनी है, उन लोगों को बहुत पसंद आई, लोगों ने सराहा उसको। I want to ask about true crime. What is it about true crime that always keeps people hooked? क्योंकि पॉडकास्टिंग में भी अगर आप देखें ट्रू क्राइम बहुत पॉपुलर जॉनरा है. इवन ऑन टीवी देयर इज दिस क्राइम पेट्रोल टाइप शोज वेयर रिक्रिएशन ऑफ क्राइम्स आर शोन एंड दे ऑलवेज गेट द हाईएस्ट रेटिंग्स. इज इट कि हम देखकर ये तसल्ली करते हैं कि भाई किसी और को हो रहा है, हमको नहीं हो रहा है, या हमको अच्छा लगता है वो डर में रहना कि हमारे साथ भी हो सकता है, या हम सीख रहे हैं? नो अर्जिता, मतलब ऐसे मर्डर हम करेंगे, हम भी ऐसे ही मर्डर करेंगे, ये चोरी हम भी इस तरह करेंगे. If you are going to commit a murder, like don't tell it in front of people beforehand, giving people hints. See, औरतें बहुत खतरनाक होती है, मैंने कहा ना आपको, अगर आप माफिया को उठा के देखेंगे तो ऐसी 13 खतरनाक औरतों की कहानी उसमें लिखी है. So you never know. Are you the 14th? I mean, I'm doing a sequel, maybe she can feature there. अगर लेकिन कोई अपराध करना चाहिए आपको. What's a true crime? You heard it here before, guys. I don't know. See, हर लोगों की अपनी अलग अलग पसंद होती है, एक उनके अलग inclinations होते हैं. I don't know what fascinates them about true crimes, but I think what happens is कि उनको क्योंकि उसमें सच्चाई और हकीकत दिखती है. They all want to know the truth, the thing which is fact, and वो उनके सामने घट रहा है और उसको देख रहे हैं. तो I think it's not more for enjoyment or pleasure, but it is just, you know, I think there's a sense of amazement in their psyche, somewhere deep recesses, कि अच्छा ऐसे भी होता है, इस तरह किया गया. वो जो उनके अंदर की हैरानी है ना, it gets, you know, fed by these kind of graphic things on the screen, जो वो उनको देखने में मजबूर करते हैं. मुझे लगता है ऐसा है, बाकी हर किसी की अलग अलग बातें हो सकती हैं. Sure. Couple of last questions. When Black Friday was being made, did you expect it to be a blockbuster? Because Anurag was an indie director, small budget की फिल्में वो बनाते थे. तो उम्मीद क्या थी आपकी कि ये फिल्म हिट होगी, moderate success होगा, क्या होगा? वो मुझे ना, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, लेकिन मैं चूँकि माई वाइफ केम फ्रॉम हिंदू बैकग्राउंड, शी टॉट मी लॉट ऑफ थिंग अबाउट हिंदुइज्म. सो उसने कर्मण्य वादे का रस्ते माँ फलेशु कदाचन वाली जो कहावत है कि कर्म किए जाओ और फल की उम्मीद मत करो. तो मुझे तो पता नहीं था कि मेरी किताब भी हिट होगी, इस किताब कोई पढ़ेगा भी, ब्लैक फ्राइडे कभी आप में पॉपुलर भी होगी, मुझे पता भी नहीं था. ये तो बहुत बाद की बात है, किताब लिख ली गई, 12 लैंग्वेज ट्रांसलेट हो गई और आज तक मुझे उसकी रॉयल्टी के पैसे आ रहे हैं. तो ये तो कमाल की बात है. फिल्म का तो बात की बात है कि वो हिट होती है, ब्लॉकबस्टर बनती है, नहीं बनती, बट शुरू का ही नहीं पता तो मुझे क्या होगा. बट देखिए, खुदा मेहरबान है तो गधा पहलवान है. तो जैसे कि काफ़ी ज़्यादा शोज़ हमने नॉन फिक्शन में भी देखे हैं, जैसे माइंड हंटर, या फिर यूट्यूब पे देयर इज़ अ वेरी फेमस शो, अ फेमस यूट्यूब सीरीज़ कॉल्ड क्रिमिनल साइकोलॉजी, जिसमें दे पिक द ब्रेन्स ऑफ क्रिमिनल्स. तो अगर आपको ऐसा अगर कभी करने का आप सोचे, ऐसा शो बनाने का सोचे, तो क्या आपके थॉट्स रहेंगे उसके ऊपर? आई डोंट नो. सी, दिस साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं इसमें ज़्यादा डेल्व नहीं करना चाहता, बिकॉज वो बहुत थियोरेटिकल है, वो बहुत बुकिश सा सब्जेक्ट है. जहाँ तक मेरा एक बहुत साफ अल्फाज में एक अंदाज़ा होगा कि जो क्रिमिनल माइंड लोग होते हैं ना, वो नॉर्मल नहीं होते. उनके दिमाग में 3rd फ्लोर में ना कोई वायरिंग हिल गई होती है उनकी, और वो उस वजह से वो कोई ना कोई क्राइम करते हैं. बिकॉज नॉर्मल आदमी किसी को तकलीफ कैसे देना चाहेगा? मतलब
किसी की हत्या कर देना, खून बहा देना, उसके बाद कुछ वायलेंस, हिंसात्मक वो कर देना, आई थिंक नॉर्मल इंसान का काम नहीं है। तो अब ये जो साइकोलॉजिस्ट लोग करते हैं किसी के जहन के गहराइयों में जा करके वो निकालना, आई डोंट नो वेदर मैं ऐसा कर पाऊंगा, करना चाहूँगा, या मैं एंजॉय करूँगा, आई डोंट नो। बट बेसिकली आई थिंक दैट दिस क्रिमिनल्स आर नॉट ह्यूमंस, दे आर वेरी सैवेज नॉर्मल पीपल। Okay, sir, we have some categories we do on this show. एक category है what has aged the best and what has aged the worst. कि फिल्म में ऐसी क्या चीज़ है जो आज तक कायम है, उसको देखने में मज़ा आता है, क्या ऐसी चीज़ है जिसको देख के मज़ा नहीं आता. तो for me, I think what has aged the best from Black Friday is, despite being a low budget film, it still looks great. They showed the blasts happening in a very authentic way. What's aged the worst, the real life implications of it, I think did not age well. Sir, if you had to say कि एक चीज़ Black Friday की जो अच्छी है और एक चीज़ ऐसी जो आप regret तो नहीं कहूँगा, but something that you see in a little dicey way, what would your answer be? See, I think उस मूवी को देखने के बाद में, Black Friday को देखने के बाद, अगर लोगों की बात ये समझ में आ जाए कि जो टेररिस्ट में जो एक बड़े लोग होते हैं, या जो रिंग लीडर होता है, जो अपने आप में जो एक टेररिस्ट में जो लोगों को, ग्राउंड लेवल के लोगों को जो मिसयूज़ करता है और उनको जो एक्सप्लॉइट करता है वो अपने इंटरेस्ट के लिए, अगर कोई एक आदमी भी ब्लैक फ्राइडे को देखने के बाद ये समझ ले कि उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, उसको ब्रेन वॉश नहीं करना चाहिए, तो मुझे लगा मेरी फिल्म कामयाब हो गई, क्योंकि दैट्स द ओनली मैसेज आई वांट टू कन्वे. सो आई थिंक दिस इज डन वेरी वेल इन दैट स्टोरी. उसमें जो कुछ किरदार की आंखों में जो बिट्रेयल दिखता है ना, द वे दे फेल्ट अबेंडन्ड बाय टाइगर मीमन, द वे दे फेल्ट दैट यू नो दे वर यूज लाइक अ डॉग गोइंग आफ्टर अ बॉल जस्ट बिकॉज द मास्टर वांट्स इट, वो फीलिंग बहुत बढ़िया है. सो मैं चाह रहा था कि वो अगर कोई एक भी समझ ले तो हम कामयाब हो जाएंगे. That has done very well. That. Okay, Urjita, anything you want to add? I think the chase sequences, they have aged the best, and along with that, I feel like the fact that it is not very filmy. Correct. Like the movie in itself ऐसा नहीं है कि मुंबई का डॉन कौन, ऐसा उसमें कोई डायलॉग नहीं है. And according to me, what has aged. Stop taking digs at Satya, Urjita. That was also a great film. Sorry, Satya also I like. But real life में ऐसी कोई चीज हुई नहीं थी. जिस लड़के को लोगों ने दौड़ते दिखाया था इम्तियाज गवाटे को, वो रियल लाइफ में बहुत ही सीधा कैरेक्टर था, उसने उल्टा सरेंडर किया था. तो आई थिंक वो जो हुआ था वो थोड़ा सा उन्होंने एक क्रिएटिव लिबर्टी ले ली उन्होंने वो वाली चीज को, अदरवाइज रियल लाइफ में वैसा नहीं हुआ था. आई थिंक दिस वन ऑफ दोस थिंग्स व्हिच अनुराग डिड फॉर द विजुअल प्लेजर. Yeah, and what has aged the worst, I think the blood signature. The blood signature? Yeah, the scene was very gory. Yeah, wow. yeah. It's the worst as in you cringe while watching Yeah. Cringe as in guys, it's painful, not because it was not bad. because it was boring. No. Yeah. Okay, last thing that we do is a segment called alternate ending. कि हम सोचते हैं कि अगर फिल्म जिस तरह से ख़त्म हुई उस तरह नहीं होती, किसी और तरह होती तो किस तरह. But this is a film which is based on real life. So I don't know how to say. I mean, if it was up to me, none of this should have happened, but it did. Is there any way, sir, you think, or do you think the film ends on an optimistic note? Because again, it ends with the Gandhi quote, "An eye for an eye makes the whole world blind." एक्चुअली उसके लिए कोई और एंडिंग हो नहीं सकती थी. अनुराग जो उन्होंने उस मकसद से फिल्म शुरू की थी कि अगर हर कोई जो है हिंसा का जवाब हिंसा से देने लगेगा तो फिर तो यानी कोई ख़त्म होने ही वाला नहीं. एक आदमी पहले एक हिंसा करेगा, दूसरा उसका जवाब देगा, फिर एक और हिंसात्मक इंसिडेंट होगा. सो देयर इज नो एंड टू वायलेंस. सो व्हिच इज व्हाट ही ट्राइड टू डू इन दैट मूवी. अगर आपने उस लोगों ने गौर से देखा है तो वो सीन्स जो किताब के बिगिनिंग में थे उन्होंने उसको क्लाइमेक्स पोर्शन में इस्तेमाल किया है. सो इट वाज हिज क्राफ्ट, इट वाज रियली अ स्किल दैट ही try to do it non-linear way and ensure कि audience still get the message. Correct. तो वो बहुत powerful message convey किया उन्होंने. I think इससे better ending I don't know, मतलब जो मेरे ज़हन में तो नहीं आ रही, हो सकती है जो अनुराग ने किया उसके अंदर. Sure. My answer also same, no difference. Okay, so on a has it aged well scale of 1 to 10, for me it's a 9 on 10. Don't ask me why I'm not giving it a 10 on 10. Why Urjita, are you for not giving it a 10 on 10? Just because. Urjita, Because for उनको you? screenwriter की payment नहीं मिली. Yes, that's why. Because the book was a 10 on 10 and the movie couldn't match up to the book. So Right. Thank it's you. the correct answer to give when you have the author on the panel. Thank you very much. Thank you. For you, Urjita? Yeah. I think on a has it aged well scale, I think 8. 8. Wow, what do you Yeah, take two yeah. points for?
What? What did you take away 2 points for? मैं नहीं बता रही. Oh wow, okay. Sir, No, if I I may. think it's go not. ahead. I felt like एक तो बहुत ज़्यादा गोरी था बीच में, and I feel like the pacing was a little too fast for me. That's what I felt. Yeah. Urjita suddenly went Martin Scorsese at the end. Like the pacing was a little off and it was gory. Sir, if I may ask, can you judge your own story being adapted? For you, how well do you think, if you had to score Black Friday on a scale of 1 to 10, the movie, how well would you think it has aged? यार अनुराग मेरा दोस्त अब भी है. मतलब क्यों मेरी दोस्ती खत्म करना चाह रहे हैं आप लोग? मैं कुछ ज़्यादा frankly बोल दूंगा तो शायद को खराब लगेगा. So I would rather keep this answer to myself. Sure. All right. Thank you so much, sir. Give it up for Mr. Hussain Zaidi. Thank you. There's a reissue of Mafia Queens of Bombay which has been published by Westland. The copies are available outside, so please do have a look. And there's a new forward by Vishal Bhardwaj, as sir said. Once again, sir, thank you so much for being on the panel. Thank you so much. Give yourselves a round of applause. Yes. Thank you. That was Has It Aged Well, and thank you so much. Stay tuned for the next panel. IVM